Good morning, everyone. As I told you that I will start the new chapter, metals and non-metals. So as you have discussed this chapter in your earlier classes, means in your 8th class and in your 9th class, and we have discussed about it that elements are divided into three categories. The first one category is metal, second one category is non-metal, and the third one category is metalloid. Metals have their some general properties, physical properties, as well as non-metals. And metalloids, they contain the properties of some of metals and some of non-metals. So basically, they contain some property of metal and some properties of non-metal, and this category is known as metalloids. These are some properties that you have discussed in your previous class. And I told you yesterday that you have to write down the difference between the physical properties of metals and non-metal. So these are some physical properties. I think these all are clear to you because we all have discussed these properties in our previous classes in 8th and in 9th also. So we will start this chapter from the next chemical properties and some exceptional cases. It is very important. Some exceptional metals and non-metals. Means we know that metals and non-metals, they have their general properties, physical property. But sometimes some metals, they do not match in the category of metal on the basis of their physical properties. But these are metal. सेम हैपन इन द केस ऑफ नॉन मेटल, वो लगता ही नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो मेटल या नॉन मेटल की कैटेगरी में लाई नहीं करते, पर वो मेटल या नॉन मेटल हैं। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज लिक्विड मेटल। हम कहते हैं मेटल्स लिक्विड नहीं होते, बट एक मेटल है जो लिक्विड होता है एंड दैट इज मर्करी। metals with low mp means melting point, it's gallium and cesium। तो जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता, हाई होता है, लेकिन ये ऐसे मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। लस्ट्रस नॉन मेटल, यहाँ NON आएगा। लस्ट्रस नॉन मेटल NON, बीच में O डाल देती हूँ मैं, NON, लस्ट्रस नॉन मेटल्स। सो लस्ट्रस नॉन मेटल्स में आयोडीन आएगा। इस बार के CBSE बोर्ड के एग्जाम पेपर में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, नेम द लस्ट्रस नॉन मेटल। सो दैट इज लस्ट्रस नॉन मेटल, दैट इज आयोडीन। तो नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, लस्ट्रस में शाइनी, जिनमें एक शाइन होती है। तो नॉन मेटल शाइनी नहीं होते, बट आयोडीन होता है। हार्डेस्ट नॉन मेटल कार्बन, कार्बन में भी कौन सा, कार्बन में भी डायमंड। एज वी ऑल नो दैट कार्बन इज प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। वो हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि भाई उन इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी बोला जाता है। दिस वर्ड इज न्यू फॉर यू, एलोट्रॉपी, बट यू ओनली नो अबाउट इट कि कार्बन एक से ज्यादा स्टेट में मिलता है। तो एक स्टेट डायमंड है, एक स्टेट उसकी ग्रेफाइट है, एक फलरेंस होती है। तो हार्डेस्ट नॉन मेटल में कार्बन और ब्रैकेट में डायमंड। देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको दोनों बातें लिखनी है, कार्बन भी लिखना होगा और डायमंड भी, बिकॉज वी डोंट नो कि भाई मार्किंग स्कीम में किस बात का मार्क्स दिया हुआ है। देन नॉन मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगेन डायमंड, क्योंकि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नॉन मेटल विद हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दैट इज ग्रेफाइट, मीन्स कार्बन। Soft metals that can be cut with knife, again this question was also in the previous this year board board paper, lithium, sodium and potassium. Metal with low density and low melting point, it is lithium, sodium and potassium. So this one slide is very important for you, because in this slide we have discussed about the different you can say exceptional cases related to metals and non-metals. Now the next one, these are the chemical properties of metals. Chemical properties are very important because physical property only give the outer appearance, but the chemical properties
are responsible for the behavior of that particular substance. For example, if it is metal, so all the all the chemical property, that why all metals are behaving like that, it is due to their chemical properties. So chemical properties of metal means how do they behave, how all metals behave. So in the very first condition, what happens when metals are burned in air? जब भी हम किसी सब्सटेंस को एयर में बर्न करते हैं या एयर में उसको रख देते हैं और उसमें एयर में रखने की वजह से उसके ऊपर कुछ चेंजेस आते हैं, इट मीन्स वो एयर में प्रेजेंट गैसेस से रिएक्ट करता है। तो अगर आप किसी सब्सटेंस को एयर में बर्न करते हो, जैसे कि हम मेटल को एयर में बर्न कर रहे हैं, इट मीन्स metal is going to react with air or oxygen. So this heading can be like that reaction of metal with oxygen. Whenever metals react with oxygen, they form metal oxide. What type of oxide? Metal oxide. And metal oxides which are formed here, these metal oxides are basic in nature. Basic in nature means कि वो कैसी नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। अगर आपके ध्यान हो, इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, chemical reactions and equation, the very first activity of your NCERT, that was the reaction of reaction of magnesium ribbon with oxygen, जहाँ magnesium ribbon को एयर में हमने बर्न किया था। तो वहां जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया था उसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व करके रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप किया था, देन दैट टर्न इनटू रेड, सॉरी रेड को डिप किया था, दैट टर्न्स इनटू ब्लू। इट मींस वो कैसी नेचर का है? बेसिक नेचर का है। सो मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है? बेसिक। हियर वी आर हैविंग टू एग्जांपल्स। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कॉपर के ब्रैकेट में ये 2 लिखा हुआ है, सेकंड। व्हाट डज इट मीन? In your 9th class you have discussed about the valencies. So copper is a metal which have variable valency. इसकी valency 2 भी होती है और इसकी valency 3 भी होती है। तो कॉपर की कौन सी वैलेंसी की बात कर रहे हैं? सेकंड वैलेंसी वाला कॉपर। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन कॉपर सेकंड ऑक्साइड। Similarly, aluminium react with oxygen to form aluminium oxide. So a general conclusion is there of this particular point, that whenever metals will react with oxygen, they form metal oxide. When copper react, it form copper oxide. When aluminium react, it form aluminium oxide. When magnesium react, it form magnesium oxide, like that. Then we go to the next slide. Such metal oxide, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए, हमने अभी अभी बात की प्रीवियस रिएक्शन में, ये 2 मेटल ऑक्साइड बने, कॉपर ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोथ आर मेटल ऑक्साइड्स। एंड आई टोल्ड यू हियर दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसी नेचर के होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के हैं? मैंने आपसे बोला मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के हैं? These are basic in nature. बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लिखा जा रहा है। Which nature? Basic in nature. But here are some examples of the metal oxide which are basic as well as acidic. देखिए, it is interesting to know. अब such metal oxides which react with both acids and as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxide. यहाँ जो प्रीवियस स्लाइड में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है, सो नो डाउट इट इज बेसिक इन नेचर, एंड एवरी बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब भी कोई बेसिक किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। सो दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद अ बेस, देखिए नीचे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। तो ये सॉल्ट है,
और ये वाटर बना, तो रिएक्शन कौन सी हुई, न्यूट्रलाइजेशन। बट aluminium oxide can also react with acid, and this aluminium oxide on reaction with acid it form aluminium chloride and water, means basic nature का aluminium oxide बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना रहा है। तो सोचिए क्या ये बेसिक नेचर की तरह बिहेव करेगा यहाँ, नो, ये यहाँ बिहेव कर रहा है एसिडिक की तरह। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटलिक ऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन आप एसिड से कराओ तो वो बन जाता है बेस, और अगर आप उसकी रिएक्शन बेस से कराओ तो वो बिहेव करता है एसिड की तरह। तो इसका मतलब ये ऐसा मेटल ऑक्साइड है विच कैन रिएक्ट विद बेस एंड बिहेव लाइक एन एसिड, as well as it can react with acid and behave like base, and in both the condition it forms salt and water। तो ऐसे मेटलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दोज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात की हुई है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट जिंक ऑक्साइड भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिहेव किया, तो इसका मतलब यहाँ ये बेस बन गया, here it behave like base, this one behave like base, और वो बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाया सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ ये क्या बन जाता है, यहाँ ये बिहेव करता है अब एसिड की तरह। अब एसिड ने रिएक्शन की बेस के साथ तो बना salt and water, very simple। all metallic oxides are not amphoteric, means all metallic oxides do not behave acid as well as base, only some metallic oxide like aluminium oxide can behave acid as well as base, so that's why that is known as amphoteric oxide, it is very important amphoteric oxide। let's move to the next। so the bases जो हम अभी बात कर रहे थे बेस हैं, all the bases are having a nature that they can convert a red litmus into blue, their solution can convert red litmus to blue। bases आपके पास दो टाइप के होते हैं, some bases are soluble in water and some bases are insoluble in water। वो बेसिस जो सॉल्युबल हैं, दोज बेसिस आर नोन एज एल्केलाइज। क्या बोलते हैं, एल्केलाइज। सो द डेफिनेशन ऑफ एल्केलाई इज वेरी सिंपल, सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्केलाइज। किस में सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल। सो द बेसिस which are soluble in water are known as alkalis, and the bases which are insoluble in water they are only known as base। तो बेस तो ये भी हैं और ये भी हैं, पर ये एक स्पेशल एक और नाम इनको दिया गया, दीज आर एल्केलाइज आल्सो। सो आई कैन से दैट all the bases are not alkalis but all the alkalis are bases। इसको आप ऐसे समझिए, ये जो ब्लू कलर का सर्कल है इट इज बेस, ठीक है, इसमें सब बेस हैं। अब इसमें दो बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, दोनों बेस हैं। इन दोनों में से सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा बेस हुआ जिसको हमने एक नया नाम दिया एल्केलाइज। तो एल्केलाइज बेस तो है ही, एल्केलाइज बेस तो है ही, बट कॉपर ऑक्साइड ये सिर्फ बेस है, वो एल्केलाई की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। सो एल्केलाइज आर बेसिस but not all bases are alkalis। is it clear? I think it is enough for you। is it enough for you? I think it is enough because आप इतने मटेरियल को अच्छे से आप डिस्कस कीजिए, मीन्स आप इसके बारे में स्टडी कीजिए, आपके पास ये पीपीटीज हैं, एनसीईआरटी आप सब बच्चों के पास है। सो
Have a nice day. Goodbye. If you have any problem, you can call me.